this GERD and Ramadan. Next, please. Well, what we will be doing कि हम ये तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि briefly कि what's the effect of Ramadan on GERD, and number two, effect of GERD on Ramadan. उसके बाद how we should manage the GERD patients in Ramadan. Next, please. Next slide, please. Next slide. Yes, we all know, I won't go into the details. Dr. Shahid ने बहुत बेहतर तरीके पे few weeks ago इस पे discussion की थी. So we all know. Next, please. Yeah, next, please. We know that the gastroesophageal reflux is a normal physiological phenomenon which is experienced by most of our people. It is called GERD when the amount of gastric juice that refluxates into the esophagus exceeds the normal limit. And then next, please. It causes the symptoms with or without associated esophageal mucosal injury. तो normal reflux और reflux disease में ये थोड़ा सा difference है कि reflux disease में वो mucosal injury हो जाती है. Next, please. Next slide, please. Yeah, I won't go into the detail, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए जो कि रमजान के लिहाज से important होगा of the pathophysiology of the GERD कि यहाँ पे जो esophageal clearance होती है, अगर आप first line देखें जो light pink है, यहाँ पे naturally चूंकि full day रोजा होता है तो salivary secretions definitely वो जरा कम होती हैं, तो mucosal clearance, esophageal clearance जरा faulty हो जाती है, and it may lead the deformed defective mucosal defense as well. बाकी जो esophageal lower esophageal sphincters के जो mechanisms हैं, transit relaxations, permanent relaxations, वो तकरीबन unaffected रहते हैं. Stomach emptying day time पे तो it's okay, लेकिन जब हम अफ्तारी करते हैं और अफ्तारी के बाद at the night time definitely इसका रोल आ जाता है. Next, please. We all know that the cardinal symptoms are the heartburn. Next, please. Regurgitation, chest pain, and extraesophageal manifestation. Next, please. Next, please. Next, please. Yeah. So these symptoms, which I just told you, the heartburn, regurgitation, chest pain, these are the symptoms जो कि exaggerate कर सकते हैं in the Ramadan. We all know कि GERD is the dynamic disease. It may be just the non-erosive reflux disease. It may be erosive reflux disease, yellow one, and at the end, it may be really a complicated one. So, patient जिस stage पे होगा, reflux management in Ramadan will be varying upon that severity of the GERD. Next, please. Next slide, please. I won't go into the detail of the classification. This is according to the severity. कि LA classification A है, B है, C है, D है. शायद रसूल ने बड़ा excellently discuss किया था lecture में. I'll just go straight away to the next slide, please. Effect of Ramadan and GERD. This is very, very important. कि Ramadan का GERD के patients पे effect क्या होता है? ये एक study जो कि publish हुई थी 2016 में, and very interesting study. Okay, effects of Ramadan fasting and clinical symptoms in patients with GERD. Next, please. The aim of the study was कि ये effect मालूम करें कि Ramadan का effect क्या होता है GERD पे. 130 GERD patients, they participated in this study, and who had not performed the दो में divide किया. One was those कि जो रोजा रख रहे थे, and one group was those कि जो रोजा नहीं रख रहे थे, and they एक standard जो GERD related quality of life questionnaire है वो follow हुआ in patients में. Next, please. And conclusions of the study were very, very interesting कि वो patients से वो जो रोजा रख रहे थे, GERD symptoms experienced was having less severity during fasting month of Ramadan compared to those one कि जहाँ पे उन्होंने रोजा नहीं रखा था. ये किया क्या था कि इन पेशेंट्स में ये क्वेश्चनर उन्होंने फॉलो किया a month before Ramadan, फिर during the Ramadan and after the Ramadan, and compare किया कि Ramadan
फास्टिंग का गर्ड सिम्टम्स पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये हुआ कि उनमें गर्ड सिम्टम्स थोड़े से कम थे। दिस इज वेरी रैशनल। अगर गर्ड इज द रिफ्लेक्सेट ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द एसोफेगस, अगर दिन को ये खाली रहेगा स्टमक, तो नेचुरली इफेक्ट्स या सिम्टम्स हार्ट बर्न कम रहेगा एज कंपेयर टू दी गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूटीनल अल्सर, स्पेशली जो एम्प्टी स्टमक पे पेन ज्यादा होता है। तो ये दिस वाज कंफर्म है रोजे का इफेक्ट गट पे ये है कि सिम्टम्स कम हो सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। नेक्स्ट प्लीज। ये कोर्स स्टडी है जो कि ईरान से पब्लिश हुई, वेरी इंटरेस्टिंग वन, के व्हाट दे डिड कि उन्होंने, नेक्स्ट प्लीज, अगेन उन्होंने पेशेंट्स फॉलो किए, लेकिन दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप में एक रोजा रख रहे थे, एक रोजा नहीं रख रहे थे। और लेकिन ये था कि दोनों को उन्होंने एंटासिड्स दिए, दोनों ने उनको एंटासिड्स दिए। इन कंक्लूजन, लास्ट लाइन, इफ यू कंसंट्रेट कि रमजान फास्टिंग हैज नो इफेक्ट्स ऑन सिम्टम्स ऑफ गर्ड इन पेशेंट्स यूजिंग एंटी-सेक्रेटरी ड्रग्स। अगर वो एंटी-सेक्रेटरी ड्रग्स ले रहे थे तो उनके सिम्टम्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद अफ्तारी के बाद उनके सिम्टम्स ज्यादा होंगे। तो दिस इज, इट टेल्स अस कि रमजान डे टाइम पे तो इफेक्ट्स को इसके इफेक्ट्स पॉजिटिव हैं कि सिम्टम्स रिलीफ होता है, और आफ्टर अफ्तारी अगर ये एंटीसेक्रेटरी ड्रग्स पे हैं तो उनके सिम्टम्स एग्जैजरेट नहीं कर पाते। सो दिस इज द वे कि वी शुड बी वेरी होपफुल कि ये डरना नहीं है कि अगर गट पेशेंट है तो रमजान उसके सिम्टम्स को एग्जैजरेट करेगा। नेक्स्ट प्लीज। जो कि नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने कहा कि हम थोड़ा सा सोचेंगे कि गर्ड का रमजान पे क्या इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज, आप जाएं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब यहां पे रह ले, ओके, यस, क्वालिटी ऑफ, नेक्स्ट प्लीज, या क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली ये अफेक्ट हो सकती है कि रमजान में नेचुरली हम इबादत करते हैं, सजदे ज्यादा होते हैं, जरा जो है ना वो टाइमिंग हमारी चेंज हो सकती है। तो नेचुरली एक पॉसिबिलिटी है कि शायद गर्ड रमजान को थोड़ा सा जरा इफेक्ट करेगा कि हम उस तरीके से पेशेंट्स शायद वो न कर पाए, इबादत ना कर पाए, स्पेशली नमाज में, सजदे में। नेचुरली वी नो कि पोजीशन, रिक्लाइन पोजीशन में ऐसी होती है कि एसिड रिफ्लक्स हो सकती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। मुझे स्टडी कोई मिली नहीं कि जो गर्ड का इफेक्ट रमजान फास्टिंग पे क्या है, लेकिन दिस इज दी हाइपोथेटिकल कि ये हो सकता है। एंड वो भी होता है कि पेशेंट्स उमन ये गर्ड के जिनमें एडवांस होता है उनमें उमन जब डिक्लाइन पोजीशन होती है तो उसमें उनके सिम्टम्स एग्जैजरेट कर जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सोशल एम्बेरसमेंट यही है कि नेचुरली जब वो हम देखते हैं कि जब डकारे मिकारे आती हैं और हार्ट बर्न होता है, स्पेशली तरावी में, तो ये वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है। नेक्स्ट प्लीज। Coming to the management of the GERD patients, we all know, next please, a lifestyle, next please, yeah, lifestyle is very, very important in the GERD patients. Next please. Yes, the first thing is fatty meals, coffee, chocolates, carbonated beverages, spicy foods, acidic foods को हमें अवॉइड करना चाहिए। इन यू नो कि हमारा ट्रेडिशन ये है कि अफ्तारी में जिस तरीके के हम डाइट खाते हैं, ये पकोड़े और ये समोसे और ये तमाम चीज़ें, हाँ, ये बेवरेजेस, कोक्स, ऑल दोस थिंग्स, जो मरमार शुरू हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट्स की, तो ऑल दीज चटनियाँ वगैरह, ऑल दीज थिंग्स डेफिनेटली दे विल एग्जैजरेट द सिम्टम्स ऑफ द गर्ड। तो ये चीज़ हमें एक थोड़ी सी केयरफुल होनी होगी। दूसरी बात ये कि ईट स्मॉलर मील्स, ये एक जनरल रिकमेंडेशंस हैं, थोड़ी सी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो एक सांस पे हम जो है ना खाते हैं और पहला पेट भर के मोस्टली लोग नमाज के लिए जाते हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो थोड़ी सी हैबिट्स, थोड़ी सी गाइड करना होता है पेशेंट्स को कि आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अमूमन होता क्या है कि या मेजर मील्स अफ्तारी के बाद की जाती है या थोड़े से बाद में की जाती है और उसके बाद फिर अमूमन सो लिया जाता है। तो दिस इज अगेन we should avoid the meals within 2 to 3 hours of bedtime, कि एक टाइम होना चाहिए, otherwise these symptoms will be really very, very exaggerated. Next please. This is again important कि body position क्या है with meals and while sleeping, कि खाना खाते हुए definitely we all, हम खाके ही बैठ के हम खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जरा लेट टाइम पे वो थोड़े से जरा
पाँव सीधी, टांगे सीधी करके जरा एक थोड़े से रिक्लाइन पोजीशन पे वो खाया जाता है, तो ये चीजें जरा अवॉइड करनी चाहिए। स्पेशली मेरे साइड पे तो यही है कि खाने के बाद फिर वो हुजरों में बैठ जाते हैं, लेटे होते हैं और जो है ना एक चीज खा रहे होते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो आई थिंक दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको थोड़ी सी बॉडी पोजीशनिंग पे भी इनको गाइड करना चाहिए पेशेंट्स को। एक और वेरी कॉमन, एवरीबॉडी नोज दिस, डॉक्टर शायद ने बड़ी डिटेल में बोला था कि हमारे जो एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड होना चाहिए, and we should be trying to lie on the left side lying down पे। अगरचे थोड़ा सा ये है कि राइट साइड पे सोना ये सुन्नत है, लेकिन इन पेशेंट्स में ये चीज है कि देखा गया है, स्टडीज में बोला है कि अगर राइट साइड, दोज हु स्लीप ऑन द राइट साइड डाउन या लेफ्ट साइड डाउन, तो लेफ्ट साइड डाउन पे बाएं तरफ पे कभी करवट लेके सोने पे जरा सिम्टम कम होते हैं, नॉकटर्नल सिम्टम्स। तो ये जनरल चीजें हैं जिसको हम थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। और अगर ये पोस्चर पेशेंट्स के सिम्टम्स को रिलीव करता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई आर नहीं है, उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज अगेन वेट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स के जो है ना, ये तो एक महीने की बात नहीं होती है, लेकिन यस के जो 20 पेशेंट्स होते हैं उनको मजीद करना चाहिए कि यार इस रमजान में आप वेट कम से कम 1-2 kg आप कम कर लें। नेक्स्ट प्लीज। एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग, यस इट शुड बी अवॉइडेड। ये बहुत अच्छा मौका होता है स्मोकर्स के लिए कि रमजान में स्मोक्स को क्विट कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर जनरल पॉइंट्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी तरीके, कुछ ऐसे एडवाइसेस जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, एंड दीज आर नॉट रियली फार्मास्यूटिकल, ये सिंपल चीजें हैं कि ड्रिंक अ ग्लास ऑफ फिनल जिंजर वाटर बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स। आप जो है ना ये जनरल मेजर्स है कि व्हाट इट हेल्प्स, कि इट प्रमोट्स डाइजेशन एज वेल एज प्रिवेंट गैस फॉर्मेशन। ये कॉमन टोटके हैं, ये टोटके भी कभी कभार काम करते हैं, बल्कि ज्यादा काम कर ही लेते हैं। फिनल बीइंग हाई इन द फाइबर और जिंजर इसके एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये ब्लोटिंग, गैस वगैरह, एसिडिटी को काफी कम करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सेकंड, जो अमूमन मैं इनसे बोलता हूँ कि व्हाट कैन बी डन कि लेट टाइमिंग्स पे आफ्टर मील्स अगर ये गम वगैरह चिविंग हो जाए, स्पेशली वो जिनके सलाइवास कम होते हैं, तो ये सलाइवरी सिक्रीशन स्टिमुलेशन कर सकते हैं, एंड इट हेल्प्स टू दी क्लींजिंग ऑफ द esophagus। तो ये जो esophageal mucosa क्लीनिंग होती है, इट कैन हेल्प इन फ्यू पेशेंट्स, स्पेशली वो जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं उनमें अमूमन ये सलाइवा वगैरह का मसला होता है, तो इवन दे कैन हैव दी शुगर फ्री गम नॉन पेपरमिंट फ्लेवर, क्योंकि पेपरमिंट मजीद एसिडिटी करेगा आफ्टर मील्स। तो ये एक और जनरल मेजर्स है। नेक्स्ट प्लीज। अमूमन जब उनसे बोलता हूँ कि आप स्मॉल पोर्शन खाएं, एट स्मॉल इंटरवल्स पे खाएं, ईट लाइक ए बर्ड एंड इट विल स्टॉप यू फ्रॉम ओवर ईटिंग। एक तो ईटिंग नहीं होगी, दूसरी एक एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा ये इनको गाइड करना होगा कि जी आपने इफ्तारी की, इसके बाद खजूर, थोड़ा सा वो लिक्विड लिए, उसके बाद सब्र किया, नमाज पढ़ी, फिर आए, फिर आपने थोड़ा सा लिया, उसके बाद फिर ब्रेक करके फिर। तो वी शुड बी हैविंग दी स्मॉल पोर्शंस ऑफ इट, स्मॉल इंटरवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल मेजर्स में। नेक्स्ट प्लीज। Eat slowly and take smaller bites. Again, ये भी चीज होती है, कभी कभार होता है ये, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि देखिए ये जल्दी होती है कि जी नमाज, जमात की नमाज के लिए पहुंचते हैं तो जल्दी जल्दी जो है ना अपना पेट भरते हैं। दैट शुड बी जनरल कि जी आप स्लोली खाएं, स्मॉलर बाइट्स खाएं, नमाज पढ़ के आए, फिर आराम से लें। इट शुड बी अ वेरी स्लो वन, एंड वी ऑल नो कि हमें एक मील कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे में फिनिश करना चाहिए, नट ये कि हम 4-5 मिनट में सब कुछ पेट भर लें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीजें होती हैं कि वी कैन हेल्प देम आउट कि किस तरह हम रिफ्लेक्स को मिनिमाइज करें। नेक्स्ट प्लीज। यस, अगेन बाय एंड लार्ज, अगर चाहिए हमारी अफ्तारी का फ्राइड फूड्स इज द मेन कंपोनेंट, इसी पे हम जो है ना हम रोजा अफ्तार करते हैं, तो इन चीजों को जरा कम से कम रखें गर्ड वाले पेशेंट्स। बिकॉज एक तो ये होता है कि ये तमाम जो है ना तेल और घी में तली होती है, तो दीज आर दी वेरी फैटी थिंग्स, एंड इट रियली इट काजेज दी फैटी फूड्स, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन टाइम, काफी टाइम लेते हैं, इवन दे कैन काज डायरिया, और स्पेशली ये ग्रिल बेट। मेरे ख्याल में कि वी शुड बी गाइडिंग देम कि ये कम से कम रखें। ये तो कर नहीं सकते कि ये कहें कि बिल्कुल समोसा पकोड़ा ना कहें, लेकिन कम से कम कहें, तो ये चीज हमें उनको गाइड करनी होती है। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक देयर शुड बी नो इशू इन आवर सेटअप फॉर दिस कि
ये लस्सी और ये दही वगैरह, दिस इज रियली अ गुड प्रोबायोटिक एज वेल एज दे हेल्प दी एसिड रिफ्लक्स एज वेल। तो मेरे ख्याल में ये हमें रूटीन में इन पेशेंट्स को अपने मील्स के अफ्तारी का और इवन सहरी में ये कंपोनेंट होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ब्रेकफास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी अ बिट अर्लियर वन, क्योंकि जिसके बाद नेचुरली एक सर्च सा होता है कि जो है ना वो अपना बस कुछ होते हैं कि जो है ना ब्रेकफास्ट अगर वो करते हैं या जरा डिले करते हैं या उसको बाद जो थोड़ा सा लेके फिर, तो इट शुड बी ए बैलेंस्ड वन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह द सेम सहरी भी है कि सहरी भी टाइम पे वो होनी चाहिए, और सहरी को भी जो है ना it should be a balanced one. It should be not very fatty, क्योंकि the whole day then there will be reflux and all those things. Next please. Red meat, yes, this is again मेरे साइड तो रेड मीट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो रेड मीट यस इट रियली टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट एंड हाई कैलोरीज एंड फैट, तो ट्राई करनी चाहिए कि व्हाइट मीट पे जाएं और रेड मीट को अवॉइड करें या मिनिमाइज करें, बिकॉज गर्ड के पेशेंट्स को ये इशू लॉन्ग टर्म में कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। एंड दिस इज अगेन कि we should tell them don't take too many antacids. ये भी important है, क्योंकि they neutralize the stomach acids, but overuse they slows down the digestion process and can expose the stomach to various harmful bacteria. तो ये चीज है कि अगर जो भी ये antacids बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी it can be hazardous in long term. Rather proper H2 antagonists, PPIs, they can be used in the confirmed GERD patients. तो वहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट प्लीज। Well, so this was a few tips about the lifestyle modification, the dietary advice, and this is very very important, क्योंकि रमजान में ये चीजें होती हैं कि आपके डाइट टाइमिंग्स, टाइम टेबल्स और कंटेंट्स, क्वालिटी एंड कंटेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीलिंग, ये मेनली यही होती है जो कि डिटरमिन करती है आपके गर्ड्स के पेशेंट्स को। फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज, वी ऑल नो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गर्ड, स्पेशली इफ इट इज द मॉडरेट टू सीवियर टाइप। नेक्स्ट प्लीज। एंड प्रोबब्ली ये स्लाइड्स आपको शायद डॉक्टर शाद ने बताई भी होगी, ना वो तो वी ऑल नो कि at different stages of the different steps of the acid release are blocked, try to be blocked. These are just the gastrin blockers, the histamine blockers, the PPIs, and आजकल जो अपने potassium sodium blockers आ रहे हैं, तो all these are the available remedies and they are really of help in, and they should be taking regularly. Dose we can double the dose and we can ensure कि ये अफ्तारी में और सहरी दोनों में ये लिया करें। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्ट बर्न मेडिकेशंस, एंटासिड्स, दे आर न्यूट्रलाइज द एसिड टू 30 to 60 मिनट्स, 1 घंटे तक, उसके बाद दोबारा रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है। H2 ब्लॉकर अप टू 12 आवर्स, लेकिन PPIs दे रियली दे काफी लॉन्ग टाइम तक 24-48 आवर्स तक ये हार्ट बर्न के से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस पेशेंट्स, अमूमन हम गर्ड के पेशेंट्स को मोस्टली लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि आप ऑन डिमांड लिया करें, लेकिन यहाँ पे दे शुड बी हैविंग दी रेगुलर ड्रग्स, और ये चाहे वो H2 ब्लॉकर पे था या PPI पे था, द ड्रग शुड बी वेरी रेगुलर along with the dietary advice. Next please. These are the potential drugs and most of them हम यूज करते हैं। सुपरफेट हम रेगुलरली यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वी कैन यूज द सुपरफेट बिकॉज ऑफ इट्स द लोकल इफेक्ट के, जहाँ पे वो कवर अप करता है जरा डैमेज म्यूकोजा को, इरिथमेटस म्यूकोजा को। हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स, जो PPIs में से PPIs आर पोटेंशियली स्ट्रॉन्गर देन H2 ब्लॉकर्स। आजकल जो पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर्स आए हुए हैं, दे हैव द एनएज ऑन इट कि ये लॉन्ग टाइम तक एल्कलाइन रखता है, पीएच को ऊपर रखता है, और इसकी एफिकेसी भी ज्यादा लग रही है। प्रोकाइनेटिक्स हम अमूमन वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ डायबिटिक पेशेंट होता है, जहाँ गैस्ट्रोपेरिसिस होती है, लेकिन मेरे ख्याल में कि गर्ड के पेशेंट्स में रमजान में वी बेटर यूज इट। द रीजन इज कि वी नीड के जो स्टमक हमने जितना जल्दी भरा है उसको हम इतना जल्दी खाली कर दें। तो आई थिंक यहाँ पे इसका रोल बनता है। एंड आई डू प्रिस्क्राइब, एंड मैंने इस पर स्टडी तो कंडक्ट नहीं किया है, लेकिन आई फाइंड इट वेरी इफेक्टिव कि स्पेशली जब स्टमक को आपने फुल भरना है और
वही बात कि 8 घंटे या बड़ा है और 14 घंटे जो है ना वो खाली है, तो मेरे ख्याल में यहाँ प्रोकाइनेटिक्स का रेगुलर यूज बनता है, एंड यू शुड ट्राई इफ द अदर ड्रग्स दे आर नॉट हेल्पिंग दिस patient. So sorry, I couldn't elaborate all slides very in detail. Next please. This was the overview, what we learned from the Dr. Shahid lecture a couple of weeks ago. तो उसमें से कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हम implement करेंगे in the terms of the GERD patients in Ramadan, because this is a very very common problem and patient do come. Patients को ये भी होता है कि आया GERD मेरे patients को मेरे disease को severe करेगा या मेरे disease को badly affect ना करे. I just shared with you studies कि स्टडीज आई हैं कि नहीं, जो पेशेंट्स ड्रग्स यूज करते हैं उनमें भी पॉजिटिव रोल है, इफेक्टिव रोल है, प्लस पर से भी फास्टिंग GERD के सिम्टम्स को कम कर सकता है. थैंक यू वेरी मच. सॉरी वंस अगेन असद, कभी कभार आदमी बिल्कुल बेबस हो जाता है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी कंसाइज एंड नाइस टॉक. और इनफैक्ट मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने रियली हेल्प अस आउट इन दिस टॉक. और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चलूँ, शायद हमने डॉक्टर फारूकी को 18 घंटे दिए थे ये सारा कुछ तैयार करने के लिए. तो थैंक यू वेरी मच इंडीड. थैंक यू. एक सर क्वेश्चन है चैट में कि इज देयर एनी रोल ऑफ प्रीबायोटिक्स इन GERD? प्रीबायोटिक के बारे में भी बता दें और प्रोबायोटिक, मुझे नहीं पता कोई ये क्वेश्चन वैसे प्रीबायोटिक के बारे में. प्रोबायोटिक्स का तो रोल है कि इट कैन फिजिकली बी और बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स. प्रीबायोटिक को रेली मैं गैसी मारूंगा कि ऑब्वियसली लगता है कि शायद रोल होगा, लेकिन मैं ये 18 घंटों में मैं जब तमाम चीजें देख रहा था मुझे इस पे स्टडी आई नहीं है, साफ बात है, देखी नहीं है. लेकिन प्रोबायोटिक का तो है आप जो है ना, लेकिन प्रीबायोटिक बायोटिक का क्या डोंट नो कि लेकिन वन कैन ट्राई अगर एवरीथिंग फेल्स. लेकिन सिर्फ इसी पे रिलाई करना, आई विल नॉट से कि जी सिर्फ इसी जो है ना बायोटिक्स पे प्री या प्रोबायोटिक्स पे रिलाई करे, बाकी कोई मेडिकेशन ना दे. मेडिकेशन आर मैंडेटरी इन GERD पेशेंट्स, स्पेशली इन कंफर्म्ड GERD पेशेंट्स. ये तो आपने करनी है. डॉक्टर अल्ताफ, आपके कोई कमेंट्स हैं? आई हैवंट हर्ड अबाउट अ लॉट ऑन प्रीबायोटिक्स इन GERD. आपके कोई कमेंट्स हैं इसके ऊपर? In general, I'm not a great fan of pre or probiotics. I don't use it. You will never find it in my prescription. So, but you know, yogurt is a good thing to take, provided it is low-fat yogurt in Ramadan, particularly in GERD. So it has probiotics and natural probiotics, and it has natural antacid properties as well. So not a bad thing to do, but as I'm not aware of a lot of role of prebiotics, particularly for GERD. One has to remember that the mainstay is lifestyle modification, standard drugs and antacids, which are the mainstay of treatment. Other tricks may or may not work in all the patients, but worth trying. If you feel it works, there is no harm in trying. Thank you. Thank you. Thank you very much. Any other question? डॉक्टर फारूकी, ये जो हैं जो नए ड्रग्स हैं, आपकी इसमें कोई प्रेफरेंस है? जिस तरह जो कन्वेंशनल पीपीआई हैं और जो नए वोनाप्रोज़ैन वगैरह जो ड्रग्स हैं, इनमें आपके कोई आई मीन आई डोंट नो, क्योंकि ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल हुए हैं रमजान में, डू यू फील देयर कैन बी अ प्रेफरेंस इन GERD पेशेंट? और थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये
इफेक्टिव होंगे, बिकॉज क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक अपने पीएच को इम्प्रूव रखते हैं, और दूसरा ये कि इसकी वो ड्यूरेशन भी लॉन्ग है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट के इवन ये normal G, I mean, when I have compared it with the PPIs, and if it is a PPI of a good standard company, तो मुझे तो पर्सनली वेरी पर्सनल नोट पे है, मुझे कोई खास फर्क इवन ये पेप्टिक अल्सर्स में डिस्पेंसरी फील हुआ नहीं है। दिस इज व्हाट हम लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ कि यार चूंकि बहुत कुछ इस्तेमाल हुए थे यार कुछ तो देना होता है, स्पेशली फंक्शनल डिस्पेप्सिया में। लेकिन theoretically possibility बनती है कि it may be helping good in that, because कि जब studies में compare हुआ है इनको PPIs के साथ, तो pH रोल definitely इनका ज़्यादा बेहतर है, because ये more than 4 इसकी prolongation ज़्यादा है, और स्पेशली वो कुछ एक स्टडी थी जो कि 2019 में आई थी कि लोअर इरोसिव एसोफेजाइटिस में इसके रिकरेंस रेट्स ज़्यादा थे, और हीलिंग रेट्स भी ज़्यादा, रिकरेंस रेट्स कम था लेकिन हीलिंग रेट्स इसके ज़्यादा थे। तो पॉसिबली मे बी, लेकिन चूंकि ये चीज़ अभी आई है और इस पर हम ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में कि मे बी अभी भी इसको एज अ फर्स्ट लाइन तो नहीं यूज़ करूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं उस वक्त यूज़ करूँगा कि अगर मेरे ये कन्वेंशनल PPIs फेल हो गए हों। लेकिन एक स्टडी थी जो कि 2019 में आई थी कि PPI के मुकाबले में ये रिकरेंस रेट्स कम करते हैं और हीलिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन व्हाट इज़ रियली इन आवर सेटअप मेरे ख्याल में कि हमारा इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। तो स्ट्रेट अवे इस पे जाना इट्स कॉस्टली, वी आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस विद इट प्रॉब्ली। तो मेरा ख्याल में फर्स्ट लाइन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये इसी पे आ जाए। आई थिंक ट्राई द गुड PPI एंड गुड डोज एंड गुड कंप्लायंस। और एक और चीज जो जनरली मेरे ख्याल में जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं फॉर GERD एंड इवन डिस्पेप्सिया, क्योंकि ओवरलैप बहुत ज्यादा है डिस्पेप्सिया और GERD का, यूजुअली इज टू इफ्तारी के टाइम पे दे शुड गो स्ट्रेट फॉर डिनर, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत है कि एक इफ्तारी होती है जो कि पूरे लवाजमात के साथ होती है, जिसमें पकौड़े, समोसे और दही भल्ले और चाट और हर चीज एक टेबल लगी होती है, और यू नो इट्स अ सेलिब्रेशन। बट व्हाट आई टेल माय पेशेंट इज टू गो फॉर डिनर स्ट्रेट अवे। अगर नमाज पहले पढ़नी है तो पानी और खजूर के साथ रोजा खोल के नमाज पढ़ ले एंड गो फॉर डिनर, एंड देन तरावी के बाद या उस तरह व्हेन यू नो ऑफ कोर्स जो भी साइकिल है भूख का, तो देन अ लिटिल फ्रूट सैलेड और समथिंग, अ सैंडविच एट दैट टाइम, मे बी थोड़े बहुत दही पकौड़े एट दैट टाइम इन अ लाइटर वेन, आई डोंट नो। आप कैसे एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस है, कोई लोग पूछते हैं, दवाई तो हम लिख देते हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। यही मैं भी बोलता हूँ कि देखिए आपने वेल जरूरी नहीं है कि तमाम चीजें या जो कुछ भी है वो अभी के टाइम पे करें। आई टोटली एग्री विद यू कि बल्कि मैं तो यही बोलता हूँ कि आप अपनी करें, इफ्तारी करें, इसके बाद नमाज पढ़ ली और उसके बाद फिर आके थोड़ा सा जो है ना वही बात है कि डिनर आपने लिया, उसके बाद आफ्टर तरावी एक थोड़ी सी लाइट चीज लेने, लेकिन एक वक्त में स्टमक को मुकम्मल फुल करना या बस बदकिस्मती से हमारी अगर जो लोग ये करते हैं अफ्तारी और डिनर भी बाद में सेपरेट करते हैं, उनकी अफ्तारी भी डिनर से ज्यादा हैवी होती है, फिर ऊपर से उनके जो है ना तो आई थिंक वी शुड बी, यही मैं से बोलते हैं जो मेरे को होता है कि ईट लाइक अ बर्ड, ईटिंग स्मॉल पोर्शंस एट स्मॉल इंटरवल्स। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली हमारा ठीक है स्टमक का एक एंड हमारे काबू में नहीं है, लेकिन दूसरा तो जो है ना वो ऑलरेडी वो भी इनकॉम्बिनेट होता है, सब कुछ ऊपर ही आता है। और उसके बाद वही चीज होती है कि ये मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी बताना चाहिए। और यही मैं उनसे करता हूँ कि आपने अगर आपने एक भी लेती है अपने पोर्शन भी आपने कम रखने हैं और क्वांटिटी भी कम रखनी है, और ये नहीं कि यही होता है बदकिस्मत से कि हम अफ्तारी में इतना खा लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना और डिनर भी हमने खत्म ही करना होता है। तो दीज आर वेरी वेरी बैड हैबिट्स। और एक और चीज जो मैंने देखी है या शायद आपका भी होगा कि मेरे ख्याल में कि ये जो हम कहवा वगैरह ये ऐसी चीजें हैं ये काफी इफेक्टिव होती हैं, प्लस ये जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं पेप्सी, स्प्राइट, राइट, आई डोंट नो, लेकिन ये तो थिंक दिस शुड बी अवॉइडेड। ये चीज ऐसी है कि ये आपको जो है ना बाद में वो जो, तो मेरे ख्याल ये चीजें हैं वी शुड बी वेरी नेचुरल, वी शुड बी वेरी आई मीन रेशनल। और
मैं उन्हीं से बोलता हूँ कि यार देखिए अल्लाह ताला ने ये एक दिन का ईद नहीं है, या 29-30 दिनों की ईद है, तो आराम आराम से कहीं एंजॉय करें। और पेशेंट्स दिन हमारा ख्याल होता है बड़ी सिंपल चीजें होती है, पेशेंट्स को बिलीव मी इनका अंदाजा नहीं होता है, इनको हमें गाइड करना होता है। और जो रियली जेन्युइन पेशेंट होता है इस चीज का, और व्हेन दे फील कि यार ये हमें इफेक्टिव होते हैं, दे फॉलो इट, वो फॉलो कर लेते हैं। उम्र होता है हम बोलते नहीं है कि ये तो आम सी बात है, क्यों बताएं उसको, बस मेडिसिन पे हम रिलाई करते हैं। आई थिंक वी नीड टू टेल देम, नीड टू गाइड देम, और बिकॉज दे रियली नीड इट। बाकी ड्रग्स तो इफेक्टिव होती नहीं होती, लेकिन चीजें करती हैं। थैंक यू। Thank you, sir. I think it's about time. So I will take advantage of Dr. Altaf Saab's presence for some final words, and over to you, Kiran. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Farooqi Saab, for saving our blushes at the last minute. Minor technical glitches don't matter. At the end of the day, it was a very good talk. The message is very loud and clear. Eat in moderation, follow lifestyle modifications, more so in Ramadan. And drug therapy is now simple, once a day or maybe maximum twice a day. So that can be taken, and you can, as we have seen, if you fast in Ramadan, GERD symptoms do not bother you much if you remain within limits. So Yes. with this message, thank you very much, Farooqi Saab. Thank you all the participants, and thank you Gets Pharma for supporting. Over to Kiran to conclude the session. Over. Thank you very much, Prof Saab, Farooqi Saab, Professor. We are grateful and thankful to the spokes and our expert and Gets Pharma for the unrestricted educational grant. Special thanks to Mahmood Sahab and of course our team at Parsa Eco Pakistan. We hope that this collaboration with Rising Foundation will produce more informative session for you in the future. And please don't forget to fill up the form for, which Uzair shared in the chat for the CME credits. So we will sign off for today. Allah Hafiz. Uzair, over to you. Please you can call off the meeting. Thank you very much, everybody. Please share, save the link and fill it out and submit the form. Thank you. Allah Hafiz.